सीईओ एट वर्क की इस श्रृंखला के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे मैनेजमेंट से जो हमें बताएगा कि उनकी सीक्रेट रेसिपी क्या है, वह अपनी कंपनी को मसालेदार और तड़केदार बनाने के लिए क्या बड़े चेंजेस करने वाले हैं, और वह जो एपेटाइट है मार्केट की और उनकी शेयर होल्डर्स को उसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे। इस श्रृंखला में हमारे गेस्ट हैं समीर खेत्रपाल साहब, जो कि जुबिलेंट फूड वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। एक रेयर मैनेजमेंट है, मुश्किल से मिलते हैं, मगर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने काफ़ी टफ डिसीजंस लिए हैं और उनका यह मानना है कि जुबिलेंट फूड वर्क, जो कि एक डोमिनोज की वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, अब एक फूड टेक कंपनी बनने को रेडी है। तो एक फूड कंपनी जो टेक्नोलॉजी का इंटरप्ले करने वाली है, वह बातचीत वही आज हमारी खास बातचीत रहेगी। So Samir, we are in a experiential kitchen of Jubilant Food Work, Domino's Pizza. And आप पिज्जा बनाते हैं, बना पाएंगे? बना पाएंगे. Okay. Just tell us the process. How does it start? ये क्या? What is this? So this is a dough ball. Okay. That is made in our commissary. It's a live product. Okay. It has yeast in it, so it will expand. Okay. The first process is to take the dough ball. Okay. Put it on this corn meal. Okay. Stretch it. Okay. Right. Bring it onto the make line. Okay. And you put the toppings. Right. In this case, you have. कौन डालते हैं इसमें? हाँ, थोड़ा सा आप कॉर्न डालिए. कौन डालते हैं? Right. So you'll typically, when you are putting corn, you will spread it. Okay. You will take some olives. Okay. And put it. Okay. And that is cheese. That is cheese. That is your unique thing, right? So that is typically you will. जितना भी डालो कम है. And then once you take it, the oven is right behind you. Okay. So it's very operationally designed. Okay. To from hand stretching to topping to putting in the oven is actually. Okay. चलो जी, ये गया oven के अंदर पिज्जा, right? So it is actually less than 1 minute. So in 7 minutes the pizza is ready. In 8 minutes the pizza is ready on the shelf. Okay. Ready to be dispatched. So this is a ready pizza which we've got, and corn and everything is there. You know, this is ready to be dispatched. This is ready to be dispatched. Okay. And 7 minutes of right time. Okay. So ideally we can deliver a pizza in 15 minutes. So in 15 minutes the pizza is actually ready. That's correct. And Delivered in to the customer. Delivered to the customer. 8 minutes of right from order taking to dispatch time, which we call as a bike start time, and 7 minutes of delivery. So the entire kitchen is designed operationally to save minutes and seconds. Food delivery companies are saying that we will deliver in 10 minutes. They're trying to beat even 15 minutes now. How would you compete with them? So firstly, we don't, as you can see, we use the freshest ingredients. Okay. We use a fresh dough ball, hand stretch it. It's never frozen, and we believe we have the density to serve the freshest pizza fastest. So take for example Gurgaon. When I joined about 2.5 years ago, we had about 35 stores. We now have about 50 stores. In Gurgaon there are 50 stores. 50 stores, and we are adding about 20 more. Only in Gurgaon? Only in Gurgaon. How many stores you have in Mumbai? We live in Mumbai, so I want to know about Mumbai. Mumbai is about 80 stores. And you're planning to add here more? Of course. Of course, in fact, there are white spaces in Mumbai that we are not able to find the store. So again, 20-minute delivery is one of the massive moats that we have in top 7 cities. So in about 12 to 18 months, you plan to cover all top 7 metros in India with 20-minute promise. Wow. So we've discussed how the pizza is made. Now we go to the new brands. The new brands are? Popeyes, Coffee, which is from Turkey, Hongs and Dunkin. And there's a biryani also. एकदम बिरयानी. चलिए, अब बात करते हैं उनके बारे में. हमारे साथ जुबिलेंट फूड वर्क से सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर समीर खेत्रपाल साहब रेडी हैं. जब भी हम डोमिनोज की बात करते हैं तो जुबिलेंट की याद आती है, और जुबिलेंट की बात करते हैं तो डोमिनोज की याद आती है. सो हमेशा जब हम डोमिनोज की बात करते हैं तो खुशी आती है, सेटिस्फैक्शन आता है, भूख लगती है. हमने देखा है कि पिछले 4-5 क्वार्टर्स में QSR के अंदर स्लो डाउन आया है, मगर जुबिलेंट ने पिछले तिमाही में एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स डिक्लेयर करे थे, और आज एनालिस्ट डे पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दी है. इतना उत्साह क्यों आ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है या हमारी जर्नी है, वो तो अभी स्टार्ट हो रही है. मैं सिर्फ डोमिनोज को देखूं तो पिछले करीब
2.5 साल में हमने 4 रीजन्स के 7 रीजन्स किए। हमने बहुत इन्वेस्ट किया स्टोर के एक्सपीरियंस में। करीब 3 से 4 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च करे, जैसे वोल्केनो पिज़्ज़ा, चीज़ बस पिज़्ज़ा। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इन सब ओकेजन्स को हमने और बड़ा किया। चाहे वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो या कुंभ का मेला हो, आपको डोमिनोज दोनों जगह तो मिलेगा। प्रसाद की बजाय वहाँ पे लोग पिज्जा खा रहे थे। हाँ, बहुत लोग आ रहे थे, और जिस तरह से लोग आए हैं, मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। आजकल कभी करोड़ों में लोग बात कर रहे हैं हर चीज़ की। तो पिछले साल हमने करीब 40 करोड़ पिज्ज़ा बेचे। 40 करोड़ पिज्ज़ा, बाप। तो हिंदुस्तान की 1/3 पॉपुलेशन को आपने पिज्ज़ा पहुंचा दिया जी। तो 40 करोड़ पिज्ज़ा जो आपने बेचे हैं, क्या इसका कोई स्प्लिट है? मेट्रोज में कितने थे, स्मॉल टाउन्स में कितने थे? बिकॉज एक ये व्यू है कि भाई पिज्ज़ा इज़ अर्बन, वड़ा पाव इज़ द फॉर द मास। ये पिछले ही सप्ताह हमने पूरे भारत में हमने 3 स्टोर्स, जो हमारे 3 रेस्टोरेंट्स जो नंबर 1 रहे रेवेन्यू में और मुनाफे में भी, वो 3 रेस्टोरेंट थे तिनसुखिया में, शोलापुर और बेलगावी। अच्छा, मेट्रो में एक भी नहीं है? हम आज की डेट में, जब मैं आया था तो हम पहला स्टोर लातूर में हमने खोला था। आज हम तीसरा स्टोर लातूर में ढूंढ रहे हैं। लातूर जैसी जगह में तीसरा स्टोर। आपके मुंबई में कितने स्टोर हैं? करीब मुंबई थाने में 187 स्टोर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम करीब 40 से 50 स्टोर और ऐड कर सकते हैं। आपके 2000 डोमिनोज स्टोर्स हैं अभी, आपने गाइडेंस दिया 3000 कर लेंगे। तो एक कैटेगरी जो हम बोल सकते हैं भाई कंपटीशन आ रहा है, फूड डिलीवरी आ रही है। ये सेम कंपनी 3-4 साल पहले स्ट्रगल कर रही थी सेम स्टोर्स को लेकर के, कई स्टोर्स उन्होंने बंद करे थे, पर आप इस समय एकदम एक्सपेंशन की बात करें, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? सो इतना कॉन्फिडेंस हमारा, देखो, एक तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहा है टेक्नोलॉजी में, जो हमारी खुद की ऐप है, हमारी कंपनी में करीब 282-283 इंजीनियर्स हैं। सारी ऐप्स हम खुद बना रहे हैं। हमने एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए बनाया है। अगर आपको बेस्ट पिज्ज़ा शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको हमारी ऐप पे मिलेगा। 30 से 20 की एक जो जर्नी है हमारी, हम पहले, आपको याद होगा, परेश रेवल की एक ऐड आती थी कि 30 मिनट में नहीं आया तो फ्री, और बोलता था वो एंड में, तुम्हें टाइम पे आने की बीमारी है क्या? अब वो बीमारी नहीं, हमारा वो डीएनए में है, धर्म हो गया हमारा वो धर्म हो गया है। वो एक पिज्जा कितने मिनट में आप डिलीवर करते हैं? एवरेज टाइम क्या है? तो हमारा एवरेज टाइम है करीब 20 मिनट। 70% हमारे पिज्ज़ा 20 मिनट के अंदर डिलीवर हो। तो ट्रैफिक की समस्या आपको क्यों नहीं आती? मैं तो जब भी जाता हूँ दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, हमेशा ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। आपका जो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय है वो कैसे टाइम पे पहुंच जाता है? हमें भी बता दिए शॉर्टकट कौन से होते हैं। तो हमने इसके पीछे काफ़ी टेक्नोलॉजी लगाई है, और काफ़ी स्टोर के जो प्रोसेसेस हैं उसको हमने हर रोज़ एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके हमने उसको काफ़ी ऑप्टिमाइज़ करा है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे ही ऑर्डर आता है, हम करीब 50 सेकंड से लेके करीब 1-1.5 मिनट में हम उसको पिज्ज़ा को ओवन में लोड कर देते हैं। ये फ्रेश ऑर्डर आता है? फ्रेश ऑर्डर आता है। ये प्री बेक पिज्जा प्री बेक पिज़्ज़ा नहीं है। हम एक डो बॉल को लेते हैं, उसको हाथ से स्ट्रेच करते हैं, उस पर फ्रेश चीज़ टॉपिंग्स डाल के उसको ओवन में लोड करते हैं। करीब 6 मिनट में वो ओवन के बाहर निकलता है। तो 7.5-8 मिनट में पिज़्ज़ा एक ऐसे डिब्बे में बंद हो जाता है, रेडी टू बी डिस्पैच। और करीब 7 से 8 मिनट का टाइम, तो 15 से 16 मिनट में हम आपके दरवाजे पे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पहुंचा देते हैं। तो अब जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स जब इंक्यूबेट हुआ था, जब स्थापना हुई थी कंपनी की, वह डोमिनोज का फ्रेंचाइजी था। फिर उन्होंने उसके अंदर और बिजनेसेस ऐड करे, फिर वह ग्लोबल गए। पपाया करके ब्रांड है, डंकिन डोनट्स करके ब्रांड है। अब जुबिलेंट फूड वर्क जो आज हमने प्रेजेंटेशन देखी, उसमें तो कह रहा हम एआई यूज़ कर रहे हैं, हम उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स है क्या? फूड टेक कंपनी है, एक पोर्टफोलियो ब्रांड कंपनी है? जैसे मैं हम अपने कंपनी में ऐसा देखते हैं कि एक आग और पानी का एक मिश्रण है। फूड और टेक्नोलॉजी हम ऐसे देखते हैं उस कंपनी को। तो जो, चाहे वो 30 से 20 की जर्नी हो, चाहे वो चीज़ का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हमारी सप्लाई चेन हो, तो हम 4-5 चीज़ों को लेके हमने एक फूड टेक कंपनी बनाई है, विच ब्रिंग्स द फ्रेशेस्ट फूड, फास्टेस्ट डिलीवरी ऑन टू द होम्स ऑफ द पीपल।
मगर आपका डिपेंडेंस आपको नहीं लगता है कि डोमिनोज ब्रांड पे काफ़ी ज़्यादा है? बिकॉज अल्टीमेटली आप एक फ्रेंचाइजी हैं और ये फ्रेंचाइजी का भी एक टाइम फ्रेम हो सकता है, ये फ्रेंचाइजी की भी ऊंच नीच हो सकती है। ऐसा नहीं हमने नहीं देखा, भगवान ना करे, पर मैंने कई बार देखा है कि लाइसेंसेस चेंज होते रहते हैं, वो रिस्क नहीं है? मुझको बिल्कुल भी नहीं लगता। आई थिंक हमारे रिलेशनशिप डोमिनोज के साथ साल भर साल इम्प्रूव हुए हैं और बहुत ही अच्छे रहे हैं शुरू से। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? तो हमको 27 साल हो गए, करीब 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर 10 साल में रिन्यू होता है। और वो हमको उसमें कोई भी ऐसा हमें नहीं लगता है, बल्कि टाइम टू टाइम डोमिनोज के साथ हम देखते हैं कौन से कंट्रीज़ में हम एक्सपैंड करते हैं। टर्की भी ऐसा ही था, बट अभी फ़िलहाल तो हम इंडिया में फोकस्ड हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। और जो अगले जो 2 ब्रांड हैं जहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो एक पॉपॉइज़ है और कॉफ़ी है, जो टर्की में वो करीब 150 उनके स्टोर्स हैं। हर साल हम 50 से स्टार्ट खोल रहे हैं। वो नंबर 7 पोजीशन पे है, इस साल करीब नंबर 5 में एंड करेगा और 3 साल में टॉप 3 कॉफ़ी ब्रांड होगा। पर इंडिया में 2 ही ब्रांड्स आपके फोकस कर रहे हैं? जी, इस समय मैं डोमिनोज, पॉपॉइज़ और कॉफ़ी इन टर्की, यही 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मैं दर्शकों के लिए कि भाई जो जुबिलेंट फूड वर्क्स है इस समय हाई ग्रोथ मोड में आ चुका है जी, और उन्हें पिज्ज़ा और अपने पोपाय ब्रांड में इतना जोर लगता है कि आने वाले 3 साल के अंदर आराम से सब चीज़ डबल हो जाएगी? यही हमारी कोशिश है कि 3 से 4 साल में हम डबल करें, उस ग्रोथ रेट पे आएँ। और इन 3 ब्रांड में हमें काफ़ी लगता है कि ये सक्षम हैं तीनों ब्रांड्स अपने आप को ग्रोथ करने में, मार्केट बीटिंग ग्रोथ देने में। मैं ऐसा देखता हूँ निकुंज जी कि जो टोटल मार्केट है इंडिया की, वो $50 बिलियन है, पूरे खाने पीने के पूरे खाने पीने की मार्केट। उसमें पिज्ज़ा सिर्फ 8,000 करोड़ है, तो $1 बिलियन। तो हम बहुत छोटे हैं। तो हमारा जो काम है एज कैटेगरी लीडर, वो हमें कैटेगरी को ग्रो करना है, हमें कस्टमर्स के पास लेके जाना है। ऑन एन एवरेज एक कस्टमर पिज़्ज़ा इंडिया में सिर्फ साल में 3 बार ही खाता है, 997 बारी वो कुछ और खाता है। तो मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रो करने की, तो हम इसी पे ही फोकस कर रहे हैं। तो वो 957 पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? आपके पास इतना डेटा है, एक बढ़िया ऐप है, फूड टेक आप बन चुके हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि भाई ऑयल इज़ द डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जी, तो इतना डेटा का यूज़ आप अलग कैटेगरीज में एक्सपैंड के लिए क्यों नहीं कर सकते? देखिए, कोई भी फूड ब्रांड बनाना इतना आसान नहीं है। 11 से 12 साल लगते हैं किसी ब्रांड को बनाने में, और एट ए टाइम मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को सिर्फ 1 या 2 ही ब्रांड्स पे फोकस करना चाहिए। नहीं तो कंपनी की कैपिटल एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, इस पे जोर पड़ता है और जो आपका मेन ब्रांड होता है वो थोड़ा सा सफ़र करता है। अपने 10 क्वार्टरों से दाम नहीं बढ़ाए, 10 क्वार्टरों के अंदर हमने देखा है कि सब चीज़ों के दाम बढ़ गए। चावल के दाम बढ़े हैं, आटे के दाम बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है सब बड़ी छोटी कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया है। तो आपको क्या समस्या आ रही थी कि आप दाम बढ़ाते तो आपकी सेल्स कम हो जाती, या फिर कॉन्शियस डिसीजन था कि आप टिके रहेंगे और जब दाम कमोडिटी से गिरेंगे आप मार्केट शेयर गेन कर जाएंगे? जी, हमारी ये बिल्कुल कॉन्शियस स्ट्रैटेजी थी कि हम प्राइस हाइक नहीं लेंगे। मार्जिन इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी के थ्रू आएगा। हमने उस पर बहुत काम किया। हमारा एक अंदर में प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विजय। उसमें सारी चीज़ें हमने, जितने भी हमारी कॉस्ट की लाइन आइटम्स है, सब पे फोकस किया सिवाय प्राइस इंक्रीज पे। डिस्काउंटिंग कम करी, स्टोर रेंटल कम करे, स्टोर की एनर्जी कम करी, कंपनी का G&A कम करा। इन सब चीज़ों पे हमने फोकस करा, प्राइस इंक्रीज नहीं लिया। उसके चलते हमने मार्केट शेयर गेन करा। आपने देखा होगा पिछले क्वार्टर में हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी QSR मार्केट के भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकुंज जी, हमने फ्री डिलीवरी करी। फ्री डिलीवरी तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था, जिसको हमने डेटा और टेक्नोलॉजी के थ्रू लेते हुए हमने। ये प्लेटफॉर्म फी जो लोग चार्ज कर रहे हैं वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे कस्टमर को फ्री डिलीवरी मिलती है, एंड उसकी वजह से हमें बहुत ही जो नए कस्टमर की जो दर है वो इस समय अपने पीक पे है। वो हमने जितना ग्रोथ हमने नए कस्टमर की देखी है पिछले 1 साल में, वो डबल हो गई है। एक आपका डाइनिंग बिजनेस भी है जी, जो करीब 20% से 22% आपका टोटल टॉप लाइन से डाइनिंग से आता है। 30% के आसपास आता है। वो बिजनेस कहाँ जा रहा है? मतलब आज मैं पिज्ज़ा घर में डिलीवर करने का एक्सपीरियंस अलग है, डाइनिंग का एक्सपीरियंस अलग है। तो अगर डाइनिंग बिजनेस का बढ़ रहा है आपके लिए, आप इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज उसमें आपको काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, हम स्टोर खोलते हैं तो हमें बेस्ट स्टोर का रिटर्न उन स्टोर्स में आता है जहाँ पे डाइन इन,
टेक अवे, डिलीवरी तीनों होते हैं। क्या लोग आकर ये पिज्ज़ा डाइनिंग खाते हैं? ये मिलेनियल्स और जो अगर मैंने जैसे आपको बताया बेलगावी या गिरिडीह या शाशाराम हमारे ये स्टोर्स हैं, वहाँ पे करीब डाइनिंग 50 to 60% है। एक्सपीरियंस है वहाँ बाहर आकर के खाना। जो Celebration है। टाउन्स में ये हम लोग अभी भी सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, तो पहली बार ही वो कोई इंटरनेशनल QSR को अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो डोमिनोज है वो। टॉप 7 मेट्रोज में डिलीवरी का ज़्यादा जोर है। आपकी टी शर्ट पे बोल्ड लिखा हुआ है, बी द बोल्ड। क्या बोल्ड का मतलब जुबिलेंट के लिए क्या है? तो हमने जो पिछले करीब 27 से 28 साल में 2000 स्टोर खोले, हमें लगता है कि हम अगले 3 साल में 1000 स्टोर खोल सकते हैं। तो बोल्ड का मतलब ये है कि बी फॉर ब्रेक थ्रू विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें अपनी कंपनी की ग्रोथ करनी है। ऑपरेशंस एक्सेलेंट, 30 से 20 टॉप 7 मेट्रोज में 20 मिनट पे रहना है। पर्पस विच इज लीड विद पर्पस, उसके थ्रू हमें अपने स्टोर की थ्रूपुट या पर स्टोर की सेल्स इंप्रूव करनी है। और डी मतलब डिलिशियस फूड, वो हमें हमेशा सर्व करना है। क्या बात है। तो आज आपने हमें सीक्रेट रेसिपी बता दी कि व्हाट इज दैट सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर एंड हाउ यू विल मेक इंश्योर दैट आपकी जो शेयर होल्डर्स की जो जर्नी रहेगी वो काफ़ी लाजवाब रहेगी। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. थैंक यू वेरी मच।